हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिटेल अबाउट अ टिपिकल न्यूक्लियस। क्लियर? एंड न्यूक्लियस आल्सो नोन एज द कैरियन। सी, दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियस. What are the structures present in a typical nucleus? See, this is outer nuclear membrane. This inner nuclear membrane, innermost. Perinuclear space, that means space present between outer and inner nuclear membrane. This highly coiled thread-like structure, that is the chromatin reticulum, and it has two parts: heterochromatin and euchromatin. This fluid inside the nucleus held by the nuclear membrane, that is the nucleoplasm, and in the nucleoplasm a small dense spherical colloidal non-membranous structure present, that is known as the nucleolus. Clear? And on the outer nuclear membrane ribosomes are present. Outer nuclear membrane attached with the endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. In the nuclear pore there are many electron dense rings, and these electron dense rings known as the annulus, and annulus along with the nuclear pore make the pore complex, which regulate the exchange of material from cytoplasm to the nucleoplasm and nucleoplasm to the cytoplasm. See, karyology. Karyology means a study of nucleus, branch of biology which deals with the study of nucleus, known as karyology. क्योंकि न्यूक्लियस को हम और भी क्या बोलते हैं? कैरियन बोलते हैं. That's why karyology. Who discovered the nucleus? Robert Brown in 1831 discovered the nucleus from ऑर्किड प्लांट सेल. ऑर्किड प्लांट सेल से रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम वेयर न्यूक्लियस ओरिजिनेटेड. सो न्यूक्लियस ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस. जो पहले से न्यूक्लियस होता है उसी से नया न्यूक्लियस ओरिजिनेट होता है. क्लियर? सो न्यूक्लियस ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस. अकरेंस कहां पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किस तरह के सेल्स में? सो जनरली प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ सेल्स, बट absent in prokaryotic cells like the bacterial cell, mycoplasma cell. Clear? RBC means mature mammalian, RBC में absent होता है. C tube of phloem, ठीक है, C tube of phloem में absent होता है. So nucleus absent in prokaryotic cell, mature mammalian RBC and C tube of phloem, and present in all eukaryotic cells. Shape of the nucleus. So nucleus generally spherical या oval shape का होता है. Clear? Generally, but it may be kidney shaped in case of monocytes. Clear? Monocyte, lymphocytes, neutrophil, acidophil, basophil, these are the different type of WBC, white blood cells. So in case of monocyte, nucleus is kidney shaped. In neutrophil, it is 3 to 5 lobed structure like this. Clear? This is the 5 lobed structure nucleus in neutrophil, and this is the kidney shaped structure in monocyte. It is bilobed structure in eosinophil or acidophil, like this structure, bilobed structure, and it is twisted structure in basophil, like this structure. Clear? So the shape of the nucleus may be kidney shaped in monocyte like this, 3 to 5 lobed in neutrophils like this, bilobed structure in eosinophil like this, and twisted in basophils like this. Clear? So the shape of nucleus also vary, but generally it is spherical or oval in shape. Next, size of the nucleus. See,
Generally it is 5 to 30 micrometer in size. Clear? But metabolically active cells have larger size nucleus. लेकिन जो मेटाबोलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है. क्लियर? बट जनरली 5 to 30 माइक्रोमीटर होती हैं. और जो न्यूक्लियस है ये मास्टर कंपोनेंट ऑफ द सेल होता है. इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड इट ऑक्युपाई अबाउट अप्रॉक्स 10% एरिया ऑफ द सेल. सेल का लगभग में 10% एरिया ऑक्युपाई करता है न्यूक्लियस. क्लियर? नंबर, हाउ मेनी न्यूक्लियस may be present in a single cell. So generally only one nucleus present per cell. एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस जनरली प्रेजेंट होता है. क्लियर? जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. क्लियर? तो ऐसे सेल को बोलते हैं हम मोनोन्यूक्लिएट सेल और यूनिन्यूक्लिएट सेल. मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल. क्लियर? एक न्यूक्लियस के अंदर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो सकते हैं. तो ऐसे सेल को क्या बोलेंगे हम? बाई न्यूक्लिएट सेल. सो बाई न्यूक्लिएट सेल मीन्स 2 न्यूक्लियस इन अ सेल. एग्जाम्पल पैरामीशियम कॉर्डम. क्लियर? पैरामीशियम की एक स्पीसीज है पैरामीशियम कॉर्डम, दैट इज द हैविंग 2 न्यूक्लियस इन अ सेल, दैट इज द बाई न्यूक्लिएटेड सेल. इन केस ऑफ ह्यूमन also the binucleated cells are present, like the example liver cell, that is the hepatocyte cells, binucleated cell. Chondrocyte cells, that is the cells of cartilage. Cells of endometrium of uterus. Clear? And salivary gland cells. So salivary gland cells, endometrium of uterus cells, chondrocyte cells and hepatocyte cells. These are the binucleated human cells. Okay? Multinucleated cell, that is the Paramecium bursaria, Paramecium multimicronucleatum and striated muscle cells, coconut endosperm. These cells contain more than two nucleus in a cell. So they are multinucleated cell. Multinucleated cell means single cell have more than 2 nucleus. Clear? So example Paramecium bursaria, Paramecium multimicronucleatum, striated muscle cell, coconut endosperm. These are the multinucleated cells. Clear? Next, syncytial cell. What is syncytial cell? Multinucleated animal cells known as syncytial cell. मल्टीन्यूक्लिएटेड एनिमल सेल को हम syncytial cell बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा, दैट इज स्ट्रिएटेड मसल सेल्स. क्लियर? और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग. सिनोसिटिक सेल, दैट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लांट सेल. मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लांट सेल को हम सिनोसिटिक सेल बोलते हैं. एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एसेप्टेट हाइफी ऑफ फंजाई. फंजाई का जो एसेप्टेट हाइफी होता है, एसेप्टेट सेल होता है, उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? सो एसेप्टेट हाइफी ऑफ फंजाई. टैपिटम सेल आर टैपिटल सेल ऑफ द एंथर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर आर पॉलन ग्रेन. एंथर के अंदर जो टैपिटम सेल होता है जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दैट आल्सो द दैट इज द मल्टीन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड भी होता है. क्लियर? और रोडोफाइसी, दैट इज द रेड एल्गी. इसमें इंटरनोडल सेल ऑफ कारा, दैट इज द सिनोसिटिक सेल होता है. और जेंथोफाइसी, दैट इज द येलो ग्रीन एल्गी. इसमें एग्जांपल है वाउकेरिया, दैट इज द मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लांट सेल है. और दैट इज द रेड एल्गी रोडोफाइसी, that is the example Griffithsia, that is the multinucleated plant cell. So Cenocytic cell means multinucleated plant cell. These are the examples of cenocytic cells. Next we see nature of the nucleus. Director and governor of cell. जो nucleus है वो cell का director and governor होता है. What is the meaning of this? This mean
nucleus control, regulate, govern, direct all the metabolic activity of a cell. जितने भी लाइफ से रिलेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सेल के अंदर, सब न्यूक्लियस गवर्न करता है. दैट्स वाई न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर एंड गवर्नर ऑफ द सेल. It is very much important in the nucleus. It is considered as the brain of the cell. As our brain control all our activity of our body, same way nucleus control all the metabolic activity of a cell. Clear? So nucleus is the director and governor of the cell. Position of the nucleus. Generally it is centrally located in animal cell. Clear? And peripheral in plant cell. प्लांट सेल में पेरीफेरल होता है, बाउंड्री की तरफ लोकेटेड होता है, और एनिमल सेल में सेंटर में लोकेटेड होता है जनरली. बट द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल में आल्सो वेरी. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं स्ट्रेटेड मसल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है. क्लियर? तो एक्सेप्शन है ये. और कॉलमुनर इपिथेलियल सेल्स में हम लोग देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बेस की तरफ प्रेजेंट होता है. क्लियर? बट जनरली इन प्लांट सेल इट इज पेरीफेरल, मीन्स टुवर्ड द बाउंड्री ऑफ द सेल, एंड इन एनिमल सेल इट इज सेंट्रली लोकेटेड. केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ different type of biomolecules like the protein 70 to 80%, phospholipid 3 to 5%, DNA 10% approx, and RNA 2 to 3%. These are the chemical composition of nucleus. Next, see here shape verticella. That is the in case of verticella cell nucleus is C-shaped, and in squamous epithelial cell nucleus is disc-like, and in smooth muscle cell nucleus is elongated. Next we are going to discuss structure of nucleus. What the component come under the structure of nucleus? Nuclear membrane, perinuclear space, nuclear pore, nucleoplasm, nucleolus, and chromatin reticulum. See, nuclear membrane, this structure, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. Nuclear membrane also known as karyotheca or nuclear envelope. न्यूक्लियर इन्वेलोप बोल सकते हैं या कैरियोथिका बोल सकते हैं. किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्या अटैच होता है? राइबोसोम्स अटैच होते हैं. और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है. क्लियर? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है. ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस. क्लियर? एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है. क्लियर? एंड दे मेक द न्यूक्लियर पोर. जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता वहां पे क्या हो जाता है? न्यूक्लियर पोर हो जाता है. लाइक दिस स्ट्रक्चर, दीज आर न्यूक्लियर पोर. एंड न्यूक्लियर पोर में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग प्रेजेंट होता है. और इसी इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग को हम क्या बोलते हैं? एनुलस बोलते हैं. एनुलस अलोंग विद द न्यूक्लियर पोर क्या बनाता है? पोर कॉम्प्लेक्स बनाता है. और ये पोर कॉम्प्लेक्स गवर्न करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म. ये सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होता है. क्लियर? सर्टेन मटेरियल को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड परमिट करता है. क्लियर? सो देयर इज द इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग on the nuclear pore, that is known as the annulus, and annulus along with the nuclear pore make the pore complex, which regulate the exchange of material from nucleoplasm to cytoplasm and cytoplasm to nucleoplasm. Next, nucleoplasm. This liquid, this fluid inside the nucleus held by the nuclear membrane known as the nucleoplasm. Clear? And in the nucleoplasm nucleolus present and chromatin reticulum present.
See nucleolus, this structure is the nucleolus and it is non-membranous, means ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेनस, स्मॉल, स्फेरिकल, डेंस, कोलाइडल बॉडी है, ठीक है। स्मॉल है, स्फेरिकल है, डेंस है, कोलाइडल है और नॉन मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियोलस कहां पे प्रेजेंट है? इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। पोजीशन क्या होता है इसका? ये पेरिफेरल इन पोजीशन होता है, बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द फोंटाना। फोंटाना डिस्कवर्ड द न्यूक्लियोलस एंड इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस बाय द बोमैन। बोमैन टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस एंड फोंटाना डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का नंबर कितना होता है? न्यूक्लियोलस का नंबर, इट मे बी जनरली 1 in each nucleus, but maybe 2 or more than 2 nucleolus in a nucleus. In case of onion cell, है ना, ओनियन सेल के केस में न्यूक्लियोलस मोर देन 1 होता है इन ईच न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, तो ये मेनली आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है एंड इट आल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल के डिवीजन में हेल्प करता है न्यूक्लियोलस और आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइबोसोमल आरएनए। इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम दैट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। क्लियर? न्यूक्लियोलस बना किससे होता है? तो न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ मेनली आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से न्यूक्लियोलस बना होता है। क्लियर? नेक्स्ट वी सी क्रोमैटिन रेटिकुलम। सी दिस स्ट्रक्चर इज द क्रोमैटिन रेटिकुलम। रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क like structure, so that is the chromatin network or chromatin reticulum. Clear? Here two parts present, two region present in chromatin reticulum. One is light region and one is dark region. This dark region known as the heterochromatin. These dark region known as the heterochromatin, and euchromatin, that is the light region of chromatin रेटिकुलम ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल। से जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तब हम उसको बोलते हैं कि सेल इंटरफेज में है। क्लियर? इंटरफेज मीन्स नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल। तो जब सेल इंटरफेज में होता है तो उस समय जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो डार्क रीजन होता है, डार्कली कलर्ड होता है। क्लियर? और हाईली कंडेंस होता है। हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस होता है, डार्क कलर्ड होता है, डार्क स्टेन होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन में मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है और इसमें जेनेटिकली इनएक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस डार्क रीजन ऑफ द क्रोमैटिन रेटिकुलम, it has more amount of protein and less amount of DNA. It has genetically inactive genes. Clear? And euchromatin, that is the light region, lightly condensed light region during the interphase, and contain more amount of DNA and less amount of protein, and it contain active genes and it is genetically active part. Clear? So euchromatin, light region, lightly condensed, more amount of DNA, less amount of protein, genetically active part and contain more active genes. Clear? So heterochromatin and euchromatin, that is the chromatin reticulum. See, chromatin reticulum is the highly coiled thread-like structure present in the nucleoplasm of the non-dividing cell. जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है ये हाईली क्वाइल्ड होता है, थीन होता है, इनविजिबल होता है, इसमें सेंट्रोमियर अपीयर नहीं होते हैं,
इंडिविजुअल नंबर कैन नॉट बी काउंट। सो इस तरह जब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तो इसको हम टर्म देते हैं क्या, क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्रोमैटिन रेटिकुलम का मतलब व्हेन द जेनेटिक मटेरियल इज हाईली क्वाइल्ड, इनविजिबल, unclear, individual number cannot be count, so that genetic material considered as the chromatin reticulum. And when cell undergo the division, chromatin reticulum become uncoiled, clear, visible, centromeres appear, individual number can be count, so that genetic material known as the chromosome. So chromosome and chromatin reticulum are the same thing but different name. क्रोमोसोम कब हम बोलते हैं, जब ये क्लियर हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, सेंट्रोमियर अपीयर हो जाएंगे, इंडिविजुअल नंबर काउंट कर सकते हैं हम, और अनक्वाइल्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, तब हम इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और जब ये हाईली क्वाइल्ड रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, इनविजिबल होता है, अनक्लियर होता है, सेंट्रोमियर नहीं अपीयर होते हैं और इंडिविजुअल नंबर काउंट नहीं कर सकते, तब हम इसको बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्लियर? सो क्रोमैटिन रेटिकुलम एंड क्रोमोसोम आर द सेम थिंग। क्लियर? सी क्रोमोसोम टर्म किसने दिया, वाल्डेयर ने। वाल्डेयर गेव द टर्म क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन रेटिकुलम टर्म्ड बाय द फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था क्रोमोसोम या क्रोमैटिन रेटिकुलम को। क्लियर? सो टर्म क्रोमैटिन रेटिकुलम आर क्रोमैटिन गिवन बाय द फ्लेमिंग एंड क्रोमोसोम टर्म गिवन बाय द वाल्डेयर। सी क्रोमोसोम किसका बना होता है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, सपोज ये हिस्टोन प्रोटीन है तो इसी के चारों तरफ डीएनए मॉलिक्यूल रैप करता है। क्लियर? और क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन एंड क्रोमोसोम नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ स्पीसीज। हर एक स्पीसीज में पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। क्लियर? जैसे ह्यूमन के ईच एंड एवरी डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द पर्टिकुलर फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ स्पीसीज। सी डीएनए मॉलिक्यूल किसका बना है, तो डीएनए मॉलिक्यूल इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, दैट इज द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और इसी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड से बना हुआ है। फास्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है। सो न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस जैसे कि एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन से बना हुआ है। ठीक है, मीन्स 4 डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन इन डीएनए। प्लस पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, C5H10O4, और इसी को बोलते हैं हम डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। क्लियर? और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है, पेंटोज शुगर है। और ये पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस से अटैच हो जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू और न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाता है और न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनता है, दैट इज द डीएनए। सो डीएनए इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम का एक स्मॉल सेगमेंट है। क्लियर? एंड डीएनए कंटेन द जीन्स। और डीएनए क्या कंटेन करता है, जीन्स कंटेन करता है। सो जीन इज व्हाट, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। इसका क्या मतलब है, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स
from parents to their offspring, from one generation to next generation. क्लियर? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है वो जीन्स के थ्रू होता है. क्लियर? एंड जीन दैट इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड डीएनए स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम. क्लियर? सो दैट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. In next lecture, we will discuss detail about the different type of cell organelles. And students, I request to you, please share, like, comment and subscribe my channel. Okay.